और हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सब लोग किताब लेके बैठे हो ना? वेरी गुड। पहली बात तो जितने लड़के बैठे हैं सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहला पार्ट, ठीक है। और अपने दोस्त यार जहां पर ही जानकारी हो सबको शेयर कर दो। सब लोग जो है इसका लुत्फ उठाना, ठीक है। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में कल हमने आपको बताया, क्या बताया उसको एक बार फिर सुन लो, इससे लय बन जाए, ठीक है। बताया बेटा, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द पोएट सर हेनरी बटन हैज taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man whose passions are not his masters is a really happy man. It means a really happy man himself is the master of his passions. He is the controller of his passions. He is the governor of his passions. He is the commander of his passions. It means the man who controls over his hunger, anger, love and thirst is a really happy man. The man who commands over his hunger, anger, love and thirst is a really happy man. The man who governs over his hunger, anger, love and thirst is a really happy man. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man who is always ready to die for the sake of honesty and truth is a really happy man. It means a really happy man is always ready to sacrifice his life on the altar of honesty and truth. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man who is free from worldly worries is a really happy man. It means a really happy man can never be tied with the chain of worldly anxieties. A really happy man can never be tied with the chain of worldly worries. He is like a free bird flying above in the sky. He can never be caged. In the eyes of the poet Sir Henry Wotton, the man who is free from princely honor, love and respect is a really happy man. It means a really happy man does not pine for princely honor, love and respect. A really happy man does not long for, long my large karna. A really happy man does not long for princely honor, love and respect. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man who is free from vulgar breath is a really happy man. It means a really happy man does not try to know what the common people of the society are khusur caring about him. A really happy man does not try to know what the common people of the society are talking about him, what the common people of the society are criticizing about him, what the common people of the society are whispering about him. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. इतना हम पढ़ चुके थे कल। अब आगे देखो, कवि ने हम पाठकों को इस पाठ में गीता सार सिखाया। आप अपने जीवन में कैसे खुश रहोगे यह पाठ सिखाया। कुछ लोग आपको सिखाएंगे अरे ये तो किताबी बातें हैं। नहीं बेटा, जो किताब में लिखा है बहुत बड़ा अनुभव लिखा है। उस अनुभव को आप यदि अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, वह किताब विद्वानों के द्वारा लिखी होनी चाहिए। अटर पटर लोग जो लिखते हैं उनके लिए नहीं बेटा। हमारी बात समझ रहे हो? तुम अब नान के बगुआ नहीं हो। तो विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबों को अगर आप पढ़ोगे, उसका अनुकरण करोगे तो निश्चित है कि जीवन आपका सुखद होगा। अच्छा,
तो तीसरा स्टेंजा देखो बेटा, क्या लिखा? हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमरस फीट, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers fate nor ruin make oppressors great. यह पाठ, यह स्टेंजा शुरू करें। तो किताब देखो, जैसे पाठक पढ़ें वैसे आपको देखना। किताब देखें क्या लिखा है? हु मिला, हैज मिला, फ्रीड, अरे यार प्रेजेंट परफेक्ट है। हु हैज फ्रीड, फ्री का थर्ड फॉर्म क्या है? फ्रीड। अरे फ्री वहां पर है ना, तो हु हैज फ्रीड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स। अब इससे सरल और क्या करना? हु हैज फ्रीड माने जो स्वतंत्र कर चुका है, हिज लाइफ माने अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स माने अफवाहों से। वह इंसान जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। क्या समझे? यानी कि खुशहाल आदमी के जीवन में अफवाह नाम की चीज नहीं होती। एक खुशहाल आदमी को सामाजिक अफवाहों की जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता। क्या सीखें? आप एक सज्जन आदमी हो, समाज के लोग आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, कहीं वो तो बहुत बड़ा हरामी पीस है। नरेंद्र मोदी सज्जन आदमी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई उनको चोर कहता है, कोई गधा कहता है, कोई घोटालेबाज कहता है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम राजनीति नहीं करते, हम तो अध्यापक हैं, आपको समझा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी उन लोगों की अफवाहों, उन लोगों के द्वारा उठाई गई अफवाहों पर ध्यान दें, तो बताइए खुश रहेंगे? है ना? यानी कि एक खुशहाल आदमी सामाजिक अफवाहों के बंधनों से मुक्त होता है, उसे सामाजिक अफवाहों की जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता। उसका लेवल बहुत हाई होता है, उसे सामाजिक अफवाहों की जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता। पहला पाठ समझ आ गया? यानी कि एक खुशहाल आदमी के जीवन में अफवाह नाम की चीज नहीं होती। दूसरा, हुज कॉन्शियंस, जिसका अंतःकरण, अंतरात्मा, यार अंतःकरण नहीं जानते, ये अंतरात्मा, जिसका अंतःकरण इज माने होता है, हिज माने उसका, स्ट्रांग माने मजबूत, और ट्रीट माने शरणस्थली। शरणस्थली, जहां पर शरण मिले उसी को शरणस्थली बोलते हैं। क्या लिखा? जिसका अंतःकरण उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली है। रिट्रीट माने, लिख लिया नहीं कापी पे? रिट्रीट माने शरणस्थली, कॉन्शियस माने अंतःकरण। जिसका अंतःकरण, जिसकी अंतर आत्मा उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है। मतलब क्या हुआ? वह इंसान जो इस संसार में कहीं शरण पावे अथवा न पावे, हमेशा अपनी अंतर आत्मा में शरण पाता है, वही वास्तव में क्या होता है? खुशहाल होता है। खुशहाल है यानी कि खुशहाल आदमी हमेशा अपने आप से संतुष्ट रहता है। एक खुशहाल आदमी हमेशा अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है। एक खुशहाल आदमी हमेशा अपने लक्ष्य से संतुष्ट रहता है। उसको कहीं शरण मिले चाहे शरण न मिले, वह हमेशा अपने आप में शरण पाता है, यानी वह अपने आप में खुश रहता है। समझाते हैं। दो राजा, दोनों राजाओं में युद्ध हुआ। दो राजा थे, दोनों राजाओं में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो युद्ध होगा तो स्वाभाविक है कि एक जीतेगा और एक हारेगा। नोट। तो जो राजा हारेगा वह भागेगा। तो भाग के कहां जाएगा? अपने राज्य में जाएगा। दो राजाओं में युद्ध हुआ, एक जीतेगा एक हारेगा। तो जो हारेगा वह भागेगा,
तो भाग के कहां शरण पाएगा? अपने राज्य में। जिस प्रकार से एक राजा को उसके राज्य में शरण मिलती है, उसी प्रकार से एक खुशहाल आदमी को उसकी अंतर आत्मा में शरण मिलती है। तो राजा राज्य का राजा हुआ, तो खुशहाल आदमी अपने राज्य का राजा हुआ, और उसका राज्य क्या है? उसका अंतःकरण। यानी कि खुशहाल आदमी अपने अंतःकरण रूपी राज्य का क्या होता है? राजा होता है। बात भाई समझ रहे हैं? राजा को शरण मिली कहां? राज्य में। खुशहाल आदमी को शरण कहां मिलती है? अंतरात्मा में। तो राजा राज्य का राजा हुआ, तो खुशहाल आदमी अपने अंतःकरण का राजा हुआ, यानी कि वह हमेशा अपने आप से संतुष्ट रहता है, वह हमेशा अपने लॉर्ड से संतुष्ट रहता है, वह हमेशा अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है। समझ रहे हैं? तीसरी लाइन है बेटा, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड। हुज स्टेट माने जिसका राज्य। अरे स्टेट माने जानते हो ना, किस राज्य में हो? उत्तर प्रदेश। हुज स्टेट जिसका राज्य, राज्य माने क्षेत्र, किसके क्षेत्र में बैठे हो इस समय? योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में बैठे हो। जिसका क्षेत्र, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड। फ्लैटरर्स माने चापलूस, अब फीड माने भरा होना। फीड फेड फेड, अरे फीड भर भया। जिसका क्षेत्र चापलूसों से भरा नहीं होता, मतलब क्या हुआ? वह इंसान जिसके क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब आसपास, पड़ोस में, जिसके आसपास, अरे ये क्षेत्र हुआ जिसके आसपास चापलूस लोग नहीं रहते। यानी कि एक खुशहाल आदमी कभी किसी की चापलूसी नहीं करता। चापलूसी करोगे, चापलूसी सुनना पड़ेगा। तो एक खुशहाल आदमी के क्षेत्र में चापलूस लोग रहते ही नहीं। अरे फीड माने भरा होना। जिसके क्षेत्र में चापलूस लोग नहीं रहते, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। यानी कि खुशहाल आदमी कभी किसी की चापलूसी नहीं करता, वह चापलूसी सुनता भी नहीं। मतलब क्या हुआ? वह इंसान जो न तो चापलूसी करता है और न चापलूसी सुनता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। समझाते हैं? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। टीवी में देखा था हमने, हमको ना सच्चाई थोड़ी जानते हो। टीवी उनके साथ थोड़े थे, टीवी में देखा था। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। जब ये पहली बार बनारस पहुंचे, उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उनका स्वागत करने के लिए बहुत बड़ा मंच बना। मंच पर जब वो चढ़े तो दुनिया भर के अंतरी मंत्री संतरी उनका पैर छूने के लिए लपके, पैर छूने के लिए दौड़े। नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा, आज से यह सब क्या है? बंद। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल काम चाहिए। यहां तक कि एक आदमी तो शंकर जी के त्रिशूल लेके चला आया। नरेंद्र मोदी ने उस त्रिशूल को धीरे से भेड़ के अंदर कर दिया, यानी कि छुपा दिया। यह क्या थी? चापलूसी थी। यानी कि वह इंसान जो चापलूसी नहीं करता और चापलूसी सुनता भी नहीं है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। आएगा सुनो, आगे लिखा, नार रूइन मेक ऑफिसर्स ग्रेट। नार माने न तो, रूइन माने बर्बादी, मेक्स माने बनाती है, ऑफिसर्स माने अत्याचारी को, ग्रेट माने महान। बर्बादी अत्याचारी को महान नहीं बनाती। शादी करते हुआ नार रूइन मेक्स ऑफिसर्स ग्रेट। नार माने न तो, रूइन माने बर्बादी, मेक्स माने बनाती है, ऑफिसर माने अत्याचारी को, ग्रेट माने महान। मतलब बर्बादी अत्याचारी को महान नहीं बनाती। एक दुकानदार है, समझो सज्जन आदमी, 10-5 गुंडे हरामी पीस अत्याचारी लोग
उसकी दुकान पे पहुंचे। बहुत सज्जन है वो दुकानदार, और सब ने मिलकर उसको भूकना शुरू कर दिया। अब वो बेचारा, भाई साहब अरे दद्दा हम ऐसा, हमसे क्या गलती हो गई, कहने लगा। तो लोगों को उस पर, जो गुंडे थे उन पर, उस पर दया गई, उसको छोड़ दिया। बताइए वह जो सज्जन आदमी है उन गुंडों के भय से उन अत्याचारियों को क्या मान लिया? मान लिया। दद्दा कहने लगा, आप हमारे दद्दा हो, हमारे भगवान हो। अकेले वहां तो माफ कर दिया गया, लेकिन अकेले बैठ के जब सोचेगा तो बताइए वह अपने आप को माफ कर पाएगा? जब उस बच्चे, उस दुकानदार की कोई भी गलती नहीं, फिर भी वह दूसरों को, यानी कि अत्याचार न हो इस भय से उसने अत्याचारियों को क्या मान लिया? महान मान लिया, दद्दा मान लिया, भगवान मान लिया। बताइए वो अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या सीखा फिर आपने? यानी कि एक खुशहाल आदमी बर्बादी से डरता नहीं है, वह बर्बादी के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन किसी अत्याचारी, हरामी, गुंडा या मवाली को कभी महान नहीं मानता। यही गीता सार। कुछ समझ आया? शुरू करें। कई पाठ सीखा बेटा। अफवाहों से जीवन मुक्त होना चाहिए। दूसरा, अपने आप से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। किसी की कभी चापलूसी नहीं करना चाहिए, और बर्बादी के भय से किसी हरामी पीस को महान नहीं मानना चाहिए। 4 पाठ इस स्टैंजा में आपने सीखा खुशहाल बनने के लिए। तो शुरू करते हैं बेटा, ध्यान सुनो। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को गीता सार सिखाया। कवि के अनुसार वह इंसान जिसका जीवन अफवाहों से फ्री है, मुक्त है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। यानी कि खुशहाल आदमी को सामाजिक अफवाहों की जंजीरों से बाधा नहीं जा सकता। वह आकाश में उड़ते हुए पक्षी की तरह स्वतंत्र होता है, उसे कभी पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। वह हमेशा अपनी मर्जी का मालिक होता है, स्वच्छंद होता है, मस्त होता है। उसके जीवन में अफवाह नाम की चीज नहीं होती। कवि का कहना है कि वह इंसान जिसका अंतःकरण उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली है, शेल्टर है, शेल्टर ना शरणस्थली, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल है। यानी कि एक खुशहाल आदमी हमेशा अपने आप से संतुष्ट रहता है। एक खुशहाल आदमी हमेशा अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है। एक खुशहाल आदमी हमेशा अपने लक्ष्य से संतुष्ट रहता है। समझ बात आ रही है ना? जिस प्रकार से एक राजा को उसके राज्य में शरण मिलती है, उसी प्रकार से एक खुशहाल आदमी को उसके अंतःकरण में संतुष्टि मिलती है। यानी कि एक खुशहाल आदमी अपने अंतःकरण रूपी राज्य का क्या होता है? राजा होता है। राजा बना दिया कहां का? अपने अंतःकरण। तीसरा पाठ का बेटा, वह इंसान जिसका क्षेत्र चापलूसों से परे है, यानी जिसके क्षेत्र में चापलूस लोग नहीं रहते, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। एक खुशहाल आदमी कभी किसी की खुशामद नहीं करता, कभी किसी की चापलूसी नहीं करता, और वह चापलूसी सुनता भी नहीं। यानी कि वह इंसान जो न तो चापलूसी करता है और न चापलूसी सुनता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। कवि का कहना है कि एक खुशहाल आदमी बर्बादी से कभी डरता नहीं है, वह बर्बादी के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन किसी गुंडा या मवाली को कभी महान नहीं मानता। यही गीता सार है। तो सुना गया, शुरू करें। मैं आपको बता दूं, by using the power of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man whose life is free from the rumors of the society is a really happy. बिल्कुल हिंदी जैसा। The man whose life is free from the rumors of the society is a really happy man. According to the poet Sir Henry Wotton, the man whose life is free from the rumors of the society is a really happy man. It means there is no rumor in the life of a really happy man. A really happy man can never be tied with the chain of social rumors.
He is like a free bird flying above in the sky. He can never be caged. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man whose conscience मैंने समझाया, अंतःकरण, the man whose conscience is his strong shelter, shelter माने शरण, the man whose conscience is his strong shelter is a really happy man. It means the man who gets shelter nowhere all over the world. The man who gets shelter nowhere all over the world, but in his own conscience is a really happy man. It means a really happy man is always satisfied with himself. A really happy man is always satisfied with his luck. A really happy man is always satisfied with his lot. As a king gets shelter, as a king gets shelter in his own kingdom, in the same way a really happy man gets shelter in his own conscience. It means a really happy man is the king of his conscience, is the king of his conscience. In the eyes of the poet Sir Henry Wotton, the man whose area, the man whose kshetra, the man whose area is out of flatterers is a really happy man. It means there is no flatterer in flatter man चापलूस. There is no flatterer in the area of a really happy man. हिंदी जैसा लगे बेटा. There is no flatterer in the area of a really happy man. It means a really happy man never flatters others. He dislikes to hear flattery. It means the man who neither flatters others nor hears flattery is a really happy man. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, a really happy man is always ready to be ruined. A really happy man is not afraid of being ruined. एक खुशहाल आदमी बर्बादी से डरता नहीं. He is always ready to be ruined, but he never admits the greatness of a गुंडा. लेकिन वह किसी गुंडा को ही महान नहीं मानता. These are the essence of the Bhagavad Gita. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. कुछ समझ पहले पढ़ा बेटा, आगे सुनो. हमने आपको बताया एक बार फिर, अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को गीता सार सिखाया. कवि का कहना है कि वह इंसान जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. यानी कि एक खुशहाल आदमी के जीवन में अफवाह नाम की चीज नहीं होती. एक खुशहाल आदमी को सामाजिक अफवाहों के जंजीरों से बाधा नहीं जा सकता. वह आकाश में उड़ते हुए पक्षी की तरह स्वतंत्र होता है. कवि का कहना है कि वह इंसान जिसका अंतःकरण उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली है वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. यानी कि वह इंसान जो इस संसार में कहीं शरण पावे अथवा न पावे, वह हमेशा अपनी अंतर आत्मा में शरण पाता है वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. यानी कि एक खुशहाल आदमी हमेशा अपने आप से संतुष्ट रहता है. वह हमेशा अपने लक्ष्य से संतुष्ट रहता है. वह हमेशा अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है. जिस प्रकार से एक राजा को उसके राज्य में शरण मिलती है, उसी प्रकार से एक खुशहाल आदमी को उसकी अंतर आत्मा में शरण मिलती है. इसका मतलब राजा राज्य का राजा हुआ तो खुशहाल आदमी अपने अंतःकरण रूपी राज्य का क्या हुआ, राजा हुआ. कवि का कहना है कि वह इंसान जिसका क्षेत्र चापलूसों से परे है वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. यानी कि एक खुशहाल आदमी के जीवन में अफवाह नाम की चीज नहीं होती. एक खुशहाल आदमी के आसपास चापलूस लोग नहीं रहते. एक खुशहाल आदमी का जीवन अफवाहों चापलूसों से परे रहता है. यानी कि एक खुशहाल आदमी कभी किसी की चापलूसी नहीं करता. वह चापलूसी सुनता भी नहीं. यानी कि वह इंसान जो न तो चापलूसी करता है और न चापलूसी सुनता है वही वास्तव में क्या है, खुशहाल. कवि का कहना है कि एक खुशहाल आदमी बर्बादी के भय से किसी अत्याचारी मवाली गुंडा को कभी महान नहीं मानता. एक खुशहाल आदमी बर्बाद हो जाएगा लेकिन वह किसी अत्याचारी गुंडा या मवाली को कभी महान नहीं मानेगा. यही गीता सार. सुनो ध्यान सुनो. हमने आपको बताया, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन
The poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man whose life is free from the rumors of the society is a really happy man. It means there is no rumor in the life of a really happy man. A really happy man can never be tied with the chain of social rumors. He is like a free bird flying above in the sky. He can never be caged. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man whose conscience is his strong shelter is a really happy man. It means the man who gets shelter nowhere all over the world, but in his own conscience is a really happy man. It means a really happy man is always satisfied with himself. A really happy man is always satisfied with his luck. A really happy man is always satisfied with his lot. As a king, clear growth, as a king gets shelter in his own kingdom, in the same way, a really happy man gets shelter in his own conscience. It means he is the king of his conscience. He is always satisfied with himself. In the eyes of the poet Sir Henry Wotton, the man whose area, the man whose state, the man whose area, the man whose area is out of flatterers is a really happy man. It means there is no flatterer in the area of a really happy man. Flatterer माने क्या होता है? चापलूस. There is no flatterer in the area of a really happy man. A really happy man never flatters others. He dislikes to hear flattery. It means the man who neither flatters others nor hears flattery is a really happy man. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, a really happy man is not afraid of being ruined. A really happy man is always ready to be ruined. हमेशा बर्बादी के लिए तैयार रहता है, but he is not ready to admit the greatness of a गुंडा. लेकिन वह किसी गुंडा को ही महान नहीं मानता. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of कुरुक्षेत्र. कुछ समझ, कुछ पहले पढ़ा, एक बार फिर सुन लो जिससे पक्का हो जाए. नहीं, ध्यान सुनो बेटा. हमने आपको बताया, by using the power of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man whose life is free from the rumors of the society is a really happy man. It means there is no rumor in the life of a really happy man. A really happy man can never be tied with the chain of social rumors. He is like a free bird flying above in the sky. He can never be caged. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man whose conscience is his strong shelter is a really happy man. कहना क्या चाहते हो? It means the man who gets shelter nowhere all over the world, but in his own conscience is a really happy man. The man who gets shelter nowhere all over the world, but in his own conscience is a really happy man. It means a really happy man is always satisfied with himself. A really happy man is always satisfied with his luck. A really happy man is always satisfied with his lot. Clear करो. As a king gets shelter in his own kingdom, in the same way, a really happy man gets shelter in his own conscience. It means he is the king of his conscience. His shelter is his conscience. His retreat is his conscience. In the eyes of the poet Sir Henry Wotton, the man whose state, the man whose area is out of flatterers is a really happy man. It means there is no flatterer in the area of a really happy man. A really happy man never flatters others. He dislikes to hear flattery. It means the man who neither flatters others nor hears flattery is a really happy man. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man who is not afraid of being ruined is a really happy man. It means a really happy man is always ready to be ruined, but he never admits the greatness of a gunda. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. आया कुछ समझ रहे? बाकी जो है
अगले दिन पढ़ाएंगे। ओके।